آف غامدیت اور ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں بلکہ ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. قاری صاحب کو اسٹیج پر ایڈ کرتے ہیں. 10 منٹس کا ٹائم انیشل ٹائم ہوگا اور وہ کوشش کہتے کیجیے ہیں میں تحقیق کرتا ہوں ساری باتیں نہیں مانتا. تو یہ نہ ہو جس پر ہم اعتراض کریں وہ میں نہیں مانتا تو بچے وہی کہ اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مجھے کلیئر اچھا کالرز وہ چاہیے. عامر بھائی ہوں بندے بانٹ لیے میرے خیال ہے نا. نہیں مجھے کلیئر کالرز چاہیے. ایسے نہیں چلے گا. جی بولیے. جی اچھا نہیں میں کوئی اختی کے خلاف ہی بات کروں گا لہٰذا رہنے دیں. کیسر بھائی آپ نے پہلے کالر مجھے پتا تھا نوید بھائی نہیں ہے غامدیت کو سپورٹ کرنے والے لیکن خیر آپ کا اسٹیج آپ کا چینل لے کے چلتے ہیں. قاری صاحب مجھ پر چھوڑیے دیکھیں ایسے کمال کے کالرز آئیں گے کیونکہ ماشاءاللہ 1950 سے اوپر لوگ ہمیں آج ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور یہ مجھے پتا ہے کہ کون یہ جو نئے ایڈ ہوئی کون ہے سمجھ جائیے. تو ہمیں وہ کالرز چاہیے جو اس وقت ٹویٹر پر شور شرابہ کر رہے ہیں. جو لوگ ٹویٹر پر ہیں ری شیئر کریں, ری پوسٹ کریں, ری ٹویٹ کیجیے اور پھر ایسے لوگوں کو ٹیگ کیجیے جو کہ غامدیت کو سپورٹ کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور آج کا پلیٹ فارم انہی کے لیے ہے. بہترین ٹاپک ہے, ریکوائرڈ ٹاپک ہے, اس کو ضائع مت کیجیے. ایسے کالرز کے اوپر ہم بالکل بھی ٹائم نہیں لگائیں گے کہ جو کچھ باتیں اور یہ باتیں نہیں. قاری صاحب میں آپ کو صرف اسٹارٹنگ کے 1-2 منٹ کا ٹائم دیکھتی ہوں کہ آپ کی بات کس طرح. اگر میں بیچ میں بزر دبا دوں گی تو ساتھ آپ کو لیو بھی کر جانا پڑ جائے گا. آج بزر میرے خیال سے بہت چلنے والا ہے. جی عامر بھائی. جی میں یہ کہنے لگا تھا کہ یعنی ٹھیک ہے بحثیت ایک انسان اب غامدی صاحب کی ہو سکتا ہے کسی بات سے اختلاف, مگر یہ ہے کہ اوور آل غامدی صاحب کے منہج کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو اس کو جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. جی قاری صاحب میں آپ سے اجازت چاہوں گی, پتہ نہیں کیوں مجھے بہت معذرت کے ساتھ سائم خان بھائی آپ کو ایڈ کرتے ہیں. جی سائم بھائی آپ غامدیت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی دوبارہ بتائیے گا سپورٹ کرتے ہیں؟ جی 100% کرتے ہیں. 100% تو نہیں کہہ سکتے, اختلاف ہے ہر جگہ. 90% ہاں جی ٹھیک ہے چلیں ان سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, مائک کو ٹھیک کیجیے گا ذرا سائم بھائی. پیچھے اگر بیک گراؤنڈ میں یوٹیوب چل رہا ہے ہیڈ فون لگائیے پلیز. ہاں میں نے آئی پیڈ لگایا ہوا ہے, دونوں میں یوٹیوب بند کر دیتا ہوں. اب صحیح آتی ہے؟ جی اب بہتر ہے. جی بات کریں کون کرنا چاہے گا؟ جی شروع کرتے ہیں بس وہ شروع کرتے ہیں پھر کیسر بھائی عبید بھائی سب موجود ہیں, بس وہ شروع کریے کیونکہ مجھے وہ تجسس ہے. آپ نے کہا آپ کچھ چیزوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں. سیم بھائی کو 1-2 چیز اگر ذکر کر دیں فار اسٹارٹر تو پھر اس کے بعد چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی. کوئی 1-2 چیز بتا دیں جس سے آپ جی جس سے اتفاق ہے, جس سے اختلاف کون سی والی تھی؟ اختلاف, جس سے اختلاف ہے. اختلاف والی چیز میں کر لیتا ہوں. مثال کے طور پر موسیقی کو لے کے جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے مجھے نہیں ان کی بات سمجھ میں آتی. اور اچھا موسیقی کو لے کے ٹھیک ہے. ہاں اور باقی جو اس کے علاوہ جو اللہ کو بھلا کرے وہ جو عیسیٰ کے معاملے کے اندر بات کرتے ہیں سما جو ترجمہ کرتے ہیں آیت کا وہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے مجھے ساحل عظیم صاحب بہتر لگتے ہیں تو میں ان کو زیادہ تر اس میں سپورٹ کرتا ہوں. چلو جی کافی. اچھا پردے کے ایشو پہ پردے کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ جو چہرے کا پردہ ہے وہ امام حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب اس طریقے سے اوور آل تو نہیں ہے سب کے اوپر. باقی سورہ احزاب کے اندر جو احکامات ہیں مزاج مطالعات کے لیے خاص تھے اور یا جو ہے یا نساء النبی کے الفاظ پردے کے موضوع کے اوپر سیم بھائی آپ غامدی صاحب سے آپ اس سے غامدی صاحب سے اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں پردے کے موضوع پہ؟ آپ چہرے کے پردے کی بات کر رہے ہیں یا وہ ستر حجاب کی بات کر رہے ہیں؟ پردہ اوور آل پردے کا جو موضوع ہے غامدی صاحب کا جو مقدمہ ہے آپ ان سے اختلاف رکھتے ہیں؟ سورہ نور کی آیت میں جو بات بیان کرتے ہیں مجھے ٹھیک لگتی ہے. ابھی تک غامدی صاحب کے مجموعی موقف سے آپ اختلاف رکھتے ہیں یا اتفاق رکھتے ہیں پردے مجھے ابھی تک تو صحیح لگتا ہے. مجھے صحیح لگتا ہے مجموعی موقف سے. ٹھیک ہے جی. اپنا عبید بھائی کیسر بھائی پردے کے موضوع کے اوپر یہ ایک مجموعی موقف کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں غامدی صاحب سے. اس پر اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کریں گے یا میں نے کوشچن کرنا ہے بتاتے ہیں آپ کیا معاملہ کیسا رہے گا؟ میں سوری میں نے کیمرہ اس لیے آف کیا تھا, بھوک بہت لگی تھی, میں ساتھ کھانا کھا رہا تھا. لیکن اس موضوع پہ نا پردے والے پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا اس لیے کہ ایز اے میٹر آف پالیسی جو فقہی معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ جو چہرے کا پردہ یقیناً اس میں ذکر آئے گا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں تو اس میں بات نہیں کیا کرتا. باقی جو آئیڈیولوجیکل فریم ورک ہے ان کا غامدی صاحب کا اس پہ کوئی بھائی ہیں تو میں ضرور بات کرنا چاہوں گا, جیسے قادیانیت کا تو اس معاملے میں آپ ہیں, عبید بھائی ہیں,
शेख हैं, जैसे आप मुनासिब समझे आप लेके ठीक सकते है। हैं। उबैद भाई, आप पर्दे के मौजू पे बात करना चाहते हैं? मगर ना मेरा कोई 1-2 सवाल है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें। आप आमिर भी आप शुरू करें, मैं आपको ज्वाइन करूंगा, आप शुरू करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सैम खान साहब, एक स्पोर्ट्स है जिसे स्विमिंग कहते हैं, ठीक है? सैम भाई निकल साइम गए? भाई निकल लिए, जी जी बस निकल गए, इतनी सी बात थी। आप करेंगे या मैं करूंगा? इधर जाऊंगा उधर आ गए जाऊंगा, भाई सैम भाई आ गए हैं। भाई रुके ना सैम भाई, हेलो, कोई क्लियर तो हो ना कि कोई बंदा रुकेगा बात करने के लिए। सैम भाई आवाज आ मेरी रही है? आवाज मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई आ रही है। नेट थोड़ा स्टेबल करें भाई, ताकि हमें भी कंफर्म हो कि हम क्या करने लगे हैं। भाई ठीक है, पता नहीं 5G मैं यूज कर रहा हूँ, जैस का मैं स्टेबल क्या करूँ, ओपन डोर में बैठा हूँ, उससे ज्यादा क्या करूँ। बस ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह करे स्टेबल रहे। अच्छा सैम भाई मुझे ये बताएं, एक स्पोर्ट है जिसको स्विमिंग कहते हैं, ठीक है? जी, अच्छा, क्या एक मुस्लिम लड़की स्विमिंग स्पोर्ट्स में, जो कि पब्लिक हो, ओपन हो, उसके अंदर हिस्सा ले सकती है, उसमें क्या कर सकती है? पार्टिसिपेट कर सकती है? भाई आपने फिकी मौजूद पर मुझसे बात करनी है, मैं आइडियोलॉजी के पे बात करना चाह रहा था बेसिकली। भाई मेरी बात सुने, गांधीज्म पर पर्दे के इशू के ऊपर आप मजमूई तौर पर मुत्तफिक हैं, ऐसा आपने बोला। अब एक उसूल है, जिस नताइज उसूल जेब पर बहस हमने नहीं है, आपके साथ चलना है। हाँ जी, उसूल बताइए, गांधी साहब के उसूल बताइए, उस पर बात करें। मैं उसूल उसी तरह बताएगा ना, पहले कोई भी इशू आता है उसके सामने एग्जांपल आएगी, फिर उस उसूल के नहीं ऊपर नहीं जज करेंगे। नो 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 एग्जाम्पल इज नॉट द उसूल, मुझे प्रिंसिपल बताइए, उनका फिकाही इस्तेदलाल नहीं बताइए कि नतीजा ये निकल रहा है, ये नहीं पूछा, प्रिंसिपल बताइए। इस्तदलाल क्यों ना बताऊं? आपने जब हिजाब के इशू के ऊपर मुतलकन उनके साथ इत्तेफाक किया सैम भाई, तो फिर बात तो करनी पड़ेगी ना। देखिए अभी उसूल एक ये है, उसूल अभी एक कुरान उसूल ही हकीम निकल से कर सामने आएगा, उसूल ही निकल कर सामने आएगा, जरा साथ उसूल चलेंगे तो निकल के आएगा। सामने लिया था, उसूल लिखा हुआ है उनकी किताब में, उसके से बात करें प्लीज। उसूल लिखा हुआ है, क्या लिख, चले ठीक है, बताएं क्या लिखा हुआ है उसूल उनकी किताब में। आप बताए ना, वो अगर कहते हैं कि कुरान हकीम मिजान और फुरकान है और सुन्नत ये दो दीन के माफज हैं, इसके अंदर इशू क्या है मुझे वो बताइए ना, बजाय कि हम नताइज के ऊपर हाँ पहुंच जाए। ठीक, ये यही उसूल है, चलें ठीक है, कुरान और सुन्ना उसूल है, ठीक है ना? ठीक है ना? जी जी, यहाँ इसके अंदर कोई इशू है तो वो बताइए। कुरान और सुन्ना उसूल है ना जी? जी जी, हाँ, अब मुझे बताएं, कुरान और सुन्ना के उसूल के मुताबिक क्या कोई लड़की स्विमिंग स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है जो कि पब्लिक में हो, ओपन हो? बोले ना जी। सैम साहेब, साइम भाई। हेलो हेलो, जी जी भाई, सर। जी मेरी आवाज आ रही है? भाई दोबारा से हमने नहीं शुरू करना, आवाज आपकी आ रही है। ओके, मुझे आप बताइए ना कि वो जो सुन्नत की तारीफ करते हैं उससे कोई इख्तलाफ है भाई तो वो बताइए। कुरान और सुन्ना गेम नहीं बदलेगी ना भाई, जहां से टूट, जितना मर्जी 5-6 बार आप ट्राई कर लें कि आवाज गई है, दोबारा से बात शुरू हो, बात वहीं से शुरू होनी है। कुरान और सुन्ना के उसूल के मुताबिक, जो आपके गांधी साहब का भी है, क्या एक लड़की स्विमिंग कर सकती है, पार्टिसिपेट स्विमिंग स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, जिसने लाइव जाना है, ओपन होना है? फिर वही बात कर रहे हैं आप भाई, आप मुझे उसूल के ऊपर बात वही करेंगे या करूंगा ना, फिर इस्तेदलाल के ऊपर आप बात जितना करेंगे? मर्जी, मेरा भाई उसूल वही बताइए। बात होगी ना, बात तो वही होगी, चाहे आपका नेट कटे या नेट जारी रहे। गांधी साहब की सुन्नत की तारीफ से क्या इख्तलाफ है वो बताइए प्लीज। पर ठीक है, मेरी तरफ से इनका हो गया मैं जज़ाकल्लाह बस खैर। काफी हो गया, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता अपना जी ना, आप सबका किसी का भी करूंगा। वो बंदा साइम लाइन पे साहब, ही नहीं आ रहा। उसूल की आप बात करते हैं। देखिए, अगर सिर्फ हमने इस चीज पे जाना है कि कुरान और सुन्नत ये हमारे लिए उसूल हैं, तो बात खत्म हो जाती है। फिर तो गांधीज्म या गांधी साहब को मानने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप इमाम अबू हनीफा हैं उनको मान लें, आप जाफरी मसलक को मान लें, आप अली को मान लें, किसी को मान लें, क्योंकि सबका उसूल तो वही है। लेकिन इशू उस वक्त आता है, डिफरेंस वहां पे आता है कि जहां पे उम्मत एक तरफ खड़ी हुई है और एक आदमी कहता है कि मेरा भी वही असूल है जो आपका है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट तकरीबन आपसे हर चीज में इख्तलाफ करता हूं, तो फिर आप असूल पे नहीं, जो इख्तलाफ है उस पर बात करेंगे कि असूल कैसे अप्लाई करते हैं। अब आमिर भाई ने एक बड़ा सिंपल सवाल किया है कि वो भी कुरान और सुन्नत को माखज़ समझते हैं, सारी दुनिया समझती है, सारे मुसलमान समझते हैं। सवाल बड़ा सिंपल है कि एक औरत स्विमिंग के किसी ऐसे मुकाबले में जा सकती है जहां पे वो मर्द औरत सारे उसको देख सकें, यानी कि वो प्राइवेट इवेंट नहीं है बल्कि एक खुला एक इवेंट है। आप बहसीते मुसलमान इस बारे में क्या राय रखते हैं? इतना सा सवाल है, आप जवाब दे दे, बात आगे बढ़ जाएगी। वेल ये डिपेंड करता है, आपने किस जवाब चीज? लेना ही है तो मैं क्या कहूँ, उसके सराउंडिंग से डिपेंड करता है उसे। देखिए, बड़ा सिंपल, सराउंडिंग की तो उन्होंने बात कह दी ना कि ओपन है, सबकी आंखों के लिए वो एक्सेसिबल है, मर्दो जन, महरम ना महरम।
सर बड़ा आसान सवाल है अर्ज किया आपके सामने, जी। हराम नहीं है, मैंने अर्ज किया आपको, ये हराम नहीं है, हलाल है, ये जायज है। हराम नहीं है ये, हराम वो अच्छा, है ठीक। जिसे अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हराम कहा। ठीक, मैं वापस आमिर भाई की तरफ जाता हूँ, लेकिन जी आपका थोड़ा सा कनेक्शन गया था, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बात जी जी स्टील मैन हो, ये इबाहम न रहे। आप ये कह रहे हैं, और अगर मैंने गलत समझा तो मुझे तसहीह कीजिएगा, कि एक औरत स्विमिंग के मुकाबले में जाती है, स्विमिंग का उसने लिबास पहना हुआ है, और वो मंजर सबकी आंखों के लिए एक्सेसिबल है, उसमें मर्द, औरत, महरम, नामहरम सारे उसको देख सकते हैं, नहीं और आप नहीं ये नहीं समझते हैं कि नहीं है। नहीं, मर्दों, मैं सॉरी, मैं मेरी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई थी, पर मर्द मैंने उस वक्त नहीं सुना था, मर्दों के सामने तो बिल्कुल नहीं जा सकते। नहीं जा सकते जी आमिर भाई, मर्दों के सामने मर्दों, वो नहीं हाँ जा सकते। जी जी, मर्दों के सामने नहीं जा सकती, इस पे पक्का रहेंगे सैम भाई? अभी तक तो मैं यही मानता हूँ, मर्दों के सामने नहीं जा सकती। हाँ ठीक है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स हो रही हैं इंटरनेशनल, ये जी, मैं मर्दों सुन के रहा हूँ, सामने, ये मर्दों के सामने हो रही हैं या मर्दों से दूर? ये तो सामने हो रही है ना, इसमें जा सकती हैं? नहीं जा सकती ना, मैंने अर्ज किया आपको। गांधी साहब कह रहे हैं जा सकती हैं। इस गुफ्तगू से हासिल क्या होगा अगर उनके प्रिंसिपल के ऊपर बात नहीं करेंगे तो? ले, एक आध बहुत पॉइंट में अच्छे, अगर आप, मैं तो बहुत अच्छे। मुझे बात, अभी हम बताया प्रिंसिपल के ऊपर क्यों आपने, नहीं बात कर कुरान रहे? और सुन्ना का उसूल सामने रहेगा। गांधी साहब कुरान और सुन्ना के उसूल के मुताबिक गांधी बात कर साहब रहे हैं आपके सुन्नत की नजदीक। जो तारीफ तो करते जब हैं कुरान और उससे सुन्ना के क्या उसूल के मसला है? मुताबिक चीज को परखेंगे, तो एक इन्ना औरत लिल्लाहि व इन्ना इलैहि क्या राजिऊन। मर्दों के साथ, जी जी पढ़ लें, अभी से पढ़ लें, अभी तो शुरू किया हमने। अच्छा, तो वो अपना मेरा मतलब है, अभी तो चौथी तकबीर बाकी है जी, सॉरी। तो मकसद कहने का ये है कि जब तक हम उस उसूल के ऊपर मसाइल को परखेंगे अच्छा, नहीं, तो जज आमिर कैसे करेंगे? आमिर साहब, आमिर साहब, आप गांधी साहब को एसोटेबल जमात में शामिल समझते हैं या बाहर? पहले जरा ये क्लियर कर देंगे प्लीज। मैं उस औरत के बारे में जानना चाह रहा हूँ, उसका हुक्म क्या है? साइम साहब, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए एक हुकुम बात। आप मुफ्ती से पूछेगा, ये ये बताइए उनका अहले सुन्नत में मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि मामला फिर साइम ऊपर साहब, फराई साहब पे जाएगा, इस्लाही साहब पे ये जाएगा, हम आपसे उधर पूछेंगे, आप लोग ये हम आपसे पूछेंगे। अरे गुफ्तगू के बाद हम ये आपसे पूछेंगे आप उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा। देखिए, आप बार बार बात करते हैं ना उसूल की। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा तौहीद का उसूल ये है कि जो सूरह इखलास में लिखा हुआ है मैं उसको मन मानता हूँ, तौहीद है, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पे बात करूँ, मैं नहीं कह रहा गांधी साहब ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे। फिर मैं एक किताब लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ उसमें कि एक आदमी अगर एक बुत के सामने सरनिगू हो जाता है, सजदा रेज़ हो जाता है, तो ये इस्लाम में जायज़ है। अब कोई आदमी अगर इस पे बात करना चाहे तो क्या आप उससे ये कहेंगे कि नहीं आप असूल पे देखें ना कि तो तौहीद परस्त हैं, या इस हुक्म पे आप जाएंगे कि भाई तौहीद परस्त होने के बावजूद ये कैसे कह रहे हैं? क्या वो जिस असूल को आप ठीक समझ रहे हैं, क्या वो खुद उसको ठीक समझ रहे हैं? ठीक समझ रहे मैं हैं अर्ज तो कर क्यों देता ऐसी हूँ आपको, मैं अर्ज कर देता हूँ आपको, मैं उसूल को देखूंगा, नतीजे को सामने रखूंगा और उस इस्तेदलाल पे जाऊंगा, तो जिस इस्तेदलाल के थ्रू उन्होंने ये नतीजा निकाला है, हो सकता है नतीजे में कोई गलती हो सकता है सही? इस्तेदलाल में कोई गलती हो सकता है उसूल बस में कोई आप गलती हो, इसको देखना पड़ेगा सही, ना। उसूल 3 चीजें आपने कही। आपने कहा कि उसूल है, इस्तिदलाल है और नतीजा है। उसूल ये कुरान और हदीस, नतीजा कुरान और ये है सुन्नत। कि जो है वो गैर मर्दों के सामने इस तरह के एटायर में जा सकती है। इस्तिदलाल, सर इस पे कुरान और आप मुझे, सुन्नत, जी कुरान और सुन्नत तो उसूल हो गया ना, वो तो हो गया। जी हदीस बोला था इस्तिदलाल, आपने, आपने हदीस बोला, टोक मैंने रहे हैं, इसलिए एक बोला। मिनट, कैसर भाई इनको मुझे डील करने दे, मुझे समझ आ गई इस बंदे की, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये बार बार टोक के जो ये अल्फाज के साथ खेलना चाह रहा है। अच्छा सैम और साहब, भाई आपने एक टोक जुमला नहीं है बोला, भाईजान, कनेक्शन, भाई साहब कनेक्शन मेरा वो हो रहा है, मुझे आवाज और थोड़ी डिले मैं आ रही है, मैं कनेक्शन टोक नहीं रहा करता हूँ भाईजान। भाई, सैम भाई रुक जाना भाई, सिंसियर भी होना चाहिए ना बंदे को। अच्छा, इन्होंने कहा जी मर्दों के सामने नहीं जा सकती, ठीक है ना जी? फिर वही आ गए आप, मर्दों, मैं उधर, इतनी अच्छी हाँ बात चल रही थी उसूल के जी ऊपर, जी आप फिर वही फिर जी आप जी वही जी है। जी 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 सर, आते हैं सैम भाई, कोई मसला नहीं है, प्यारे भाई अच्छा, हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने बात एक बात फरमाइए। रखी, आपने कहा कि जी वो मर्दों के सामने नहीं जा सकती, ठीक है ना? मैं ये समझता हूँ, हाँ, अच्छा, औरतों के सामने जा सकती है? औरतों के सामने जा सकती है? तो बड़ा बार बार जा रहा है, कैसर भाई की टाइम नहीं जा रहा था, मुझे क्या मसला है, मेरे साथ मसला है कोई? उफ़्ते मेरे ख्याल में इनसे जब तक इनका माइक या कनेक्शन ठीक नहीं होगा इनसे इजाजत लें। मुझे लगता जी, है जी। इनका कनेक्शन जो है ना वो गामदीद की तरह ही है, गामदीद की तरह कभी कभी वो कनेक्ट करता है। शरीयत खैर ये नहीं कहना चाहिए। हाँ। ये एक बार तो मैंने कहा चलो मर्दों के सामने जा सकती है, पूछ लेते हैं इनके उसूल के मुताबिक क्या गैर महरम औरतों के सामने जा सकती है कि नहीं, उस पर भी सख्ती गुल हो गई है, मैं क्या करूं? मैंने आपको बताया, मैंने कहा है प्राइवेट पे जा सकता हूँ। बस ठीक है, अलीना सिस्टर इनसे इजाजत ले लें, क्योंकि ये इनके साथ 5-10 मिनट हमें हर गुफ्तगू के अंदर इनका कनेक्शन सेट करवाने लगे, इतने कोई लाडले तो है नहीं है ना जी? जी माजर भाई, बहुत अगर मेरा शुक्रिया, कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो माजर, जी भाई, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बड़ी बात।
इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे अच्छा साथ जो है सॉरी आगे जी, बढ़े इससे मैं एक चीज जो हमारे लोग सुन रहे हैं बुरा मत मानिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जब तक तनकीद नहीं की जाएगी हम सही मानों के अंदर उसूल वजह नहीं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज जरूर रखना चाहता हूँ कि हम गामदी साहब के उसूलों को भी परखेंगे, उनके निकाले हुए नतीजों को भी जेर बहस लाएंगे। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि सिर्फ उसूलों पे परखे रहेंगे तो भाई ऐसा नहीं है, हमें गामदी साहब के साथ उसूल से लेकर फुरूआत तक में इख्तलाफ है जो उनके नताइज है, तो इसलिए कोई भी चीज डिस्कस होगी और जो जारी बात है हमारी तशवीश है हम रख देंगे, आपकी मर्जी के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। चल बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अच्छा, मोर देन 2000 पीपल हमें जो है वो देख रहे हैं माशाल्लाह से। शेयर करते रहें, इसी तरह लाइक करना ना भूलिए, और जो लोग ट्विटर पर हमारे साथ मौजूद हैं, गामदियत को सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, वो ट्विटर पर भी लिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, या कैसे भाई वहाँ पे एक दफ़ा डाल दें, लिंक कर दें तो बेहतर हो जाएगा, वरना यूट्यूब पे आपको कॉल लिंक मिल जाएगा, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपने ग्रुप्स वगैरह में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आज की हमारी स्ट्रीम को, और साथ साथ नेक्स्ट कॉलर्स को भी हम ऐड करते हैं। कारी साहब ने दोबारा हमें ज्वाइन किया है, आपको मौका दे दिया जाएगा, लेकिन